ثابت کر دیجئے کہ تو گریویٹیشنل کتنا پڑھا لکھا ہے بھائی؟ تو کتنا پڑھا لکھا ہے؟ تو اتنا بتا. میں جتنا پڑھا لکھا ہوں آپ لوگوں سے سائنٹیفکلی پروف کتنا کرنے کے لیے گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، کیا کیا ہے تو نے؟ بابا جی کا ٹھلو کیا اس نے ساحل. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. کتنا پڑھائی کیا ہے؟ وہ تیرے اسکول کے اوپر میں فرسٹ لیول میں پڑھا ہے. اس کا اور اس کے اسکول دونوں کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا، لائسنس رد کرو بھائی لوگ. بھائی کون سی اسکول میں سے پڑھا تو نے اور کتنا پڑھا ہے؟ کیا ڈگری ہے تیری؟ بھائی آپ لوگوں کا دماغ ایسا ہے نا، اچھا ڈگری تو بتا تیری. شیطان ہی آپ لوگوں کو صحیح کر سکتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں سمجھا سکتا. میریکل ہوتا ہے. بھائی ایک منٹ یار، ایک منٹ پلیز ایک منٹ. اگر میریکل ہوتا ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ میں سائنٹیفکلی پروو کروں گا؟ ہاں تو گریویٹیشنل فورس بھی پھر وہ سائنٹیفکلی نہیں ہے، وہ بھی میریکل ہے. ابے ڈنگر، وہ سائنس میتھمیٹکس سے پروون فورس ہے یار. ساحل مارو. گریویٹیشنل فورس جس کو آپ کہہ رہے ہو، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ابے پیدا کی بات نہیں ہے. اگر دیکھ سن میری بات سن. اگر پیدا کی بات پہ تو چلے گا تو میں یہ بولوں گا کہ جو ہے ہاتھی اڑتا ہے، پھر مجھے پوچھے گا کیسے اڑتا ہے تو میں کہوں گا کس نے پیدا کیا ہاتھی کو؟ کسی نے پیدا کیا نا، اس وجہ سے ہاتھی اڑتا ہے. مجھے بتاؤ گریویٹیشنل کا جو یہ ہے ارتھ کا جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ کتنا ہے؟ لمٹ بتائیے میرے کو. ارے اس سے کیا لینا دینا کو کتنا لمٹ ہے کیا ہے؟ تو یہ جو آرگیومنٹ دے رہا ہے کہ کسی نے پیدا کیا ہے، اس کو میری بات سن بھائی، پورا دماغ صحیح کرتا ہوں. بات سن. آپ میریکل نہیں مان رہے تو سائنٹیفک آپ بتاؤ، سائنٹیفک جواب دو. پھر تو تیرے کو گریویٹیشنل فورس کے بارے میں نہیں پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا تو بتاؤ نا کتنا ہے دنیا. تیرے کو نہیں پتا ہے کیا؟ ایکسکیوز می، میں بتاؤں؟ ہیلو، ہاں بتاؤ جلدی سے بتاؤ. تجھ سے پوچھنا ہے اور کسے پوچھنا ہے؟ 981 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. 2 فٹ ہے منہ. 9.8 نیوٹن میٹر. ہاں تو میٹر اور کہاں سے آ گیا؟ میٹر بولا میں 9.8 سینٹی میٹر نیوٹن میٹر. اچھا بات سن، یہ تجھے کہاں سے پتا لگا؟ ہوا نا بھائی. کہاں سے پتا لگا؟ گوگل سے. میں سیریس میں بولا. گوگل سے پتا لگا نا. اچھا یہ اب اس کا فارمولا کیا ہے ٹوٹل؟ اس کا پورا فارمولا بتا. کیا پورا فارمولا؟ اس کا پورا فارمولا بتا نا، کس طرح نکالا انہوں نے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس کا فارمولا کیا ہے؟ فارمولا نہیں معلوم بھائی. فارمولا نہیں معلوم تو یہ تو نے گوگل سے لیا اس کا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب تو نے پڑھا نہیں تھا سائنس میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پروون میتھمیٹیکل پروون ویلیو ہے. کریکٹ؟ ہاں تو یہ تو انسان نہیں بنایا نا. تو گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ خالی حساب کیا کتنا. تو گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ تھوڑی بنا. ناؤ اب تو نے یہ بتانا تھا ہمیں، یہ پروو ہو گیا ہے، یہ پروو ہو گیا کہ گریوٹی ہے. تو چاند ہوا میں ایوے ہی نہیں کھڑا، وہ اس گریویٹیشن کی وجہ سے. میں اگر بولوں کوئی گریوٹی کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی اللہ کا طرف سے. چل دفعہ ہو جا. تو سب سے بڑا گدھا ہے. پھر تو سب سے بڑا گدھا ہے اگر تو یہ بولے گا تو. بات کرنی ہے مزید؟ بات کر بھائی آدم تو کر. میں نے بھی بیک سٹیج کیا، تو نے بات کرنی ہے، میں نے تو نہیں کرنی اس سے بات یار. مجھے نا ویور سے پوچھنا تھا کہ اگر یہ اسرو ٹیم میں ہوتا تو کیا چندریان 3 سکسیسفل لینڈ ہو سکتا تھا یا نہیں چاند پر؟ یہ ویور سے بتائیں. یس یا نو. چندریان 3 جو ہے نا وہ آسٹریلیا پہنچ جاتا اگر یہ وہاں پہ ہوتا تو. چائنا کے ساؤتھ پول پہ لینڈ ہوتا. اچھا ایڈم، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے سر. یہ گدھے لوگ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ چاند ہے، سورج ہے، یا جو بھی ہے جو بنا کسی سہارے کے ہے، وہ گریویٹیشنل فورس یا جو بھی چیزیں ہے، لاز ہے، وہ ایک چیزیں جو ہے وہ سیٹ ہے، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہاتھی اڑتا ہے، اور اس کا ایگزامپل دے کیونکہ چاند جو ہے بنا سہارے کے، اس وجہ سے ہاتھی بھی بنا سہارے کے آسمان میں رک سکتا ہے، تو یہ مانا جائے گا؟ سر ان کے مطابق مانا جا سکتا ہے سر، میرے مطابق تو نہیں مانا جا سکتا.
तो भाई फॉल्स इक्विवेलेंस इनके है ना, इनके जीन्स में भरा पड़ा है इस्लाम की वजह से। हाय अच्छा, हाथे उड़ने से मुझे एक याद आ गया लाला जी, बहुत मस्त है। एक इंडिया में एक मौलाना अब्दुल्ला खां आजमी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने क्या कहा, असरा का मेराज का वाकया बतला रहे थे। उम्मे हानी के घर से जो बुराक चला था वो जाकर के मस्जिद अक्सा रुका था, उसके बाद उड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप रनवे पर देखिएगा, जो जहाज होता है पहले रनवे पर दौड़ता है, दौड़ने के बाद लास्ट में उड़ता है। इसी तरह उम्मे हानी के घर से बैतुल मुकद्दस तक रनवे था, बुराक वहां तक दौड़ा, हाँ, उसके बाद उड़ा है 7वें आसमान। तो वहां पे वो रुक के नमाज कैसे पढ़ ली नबी ने, और उसको खूंटी पे कैसे टांग दिया? हाँ तो जहाज पर, हाँ ये बात भी सही है, जहाज तो रनवे पे दौड़ने वो के बाद रुक तो नहीं सकता, फिर वो रनवे दोबारा किस रनवे पे भागा था वो? पॉइंट अब कभी उनकी तकरीर सुनूंगा तो कांटेक्ट करके पूछूंगा कि रुका क्यों, फिर वहां से उड़ जाना चाहिए था डायरेक्ट। जी बिल्कुल, जी जनाब। जी मुअजिज़ा का मतलब होता है कि एक चैलेंज है, जो डन चैलेंज है जी, अल्लाह ने किया और लेकिन उसको दुनिया में कोई तो लिखे। चांद मोहम्मद ने तोड़ा, किसी ने नहीं लिखा। इसी तरह सलमान का उड़न खटोला उड़ा, किसी ने नहीं लिखा। भाई क्यों नहीं लिखा? चांद को तोड़ने का वाकया ये सहाबा किराम ने देखा है, और आप जो किसने लिखा है? मुझे बताओ, जो सऊदी, जो मक्का के ऊपर चांद था, की किताबों में आपको मिलेगा। जो मक्का के ऊपर चांद था, क्या वो चांद कोई और था जो मदीना के ऊपर था? नहीं, मदीना के लोगों ने भी देखा, एक ही चांद था। नहीं देखा। ये मक्कन आयत है, नहीं देखा। इंडिया के लोगों ने भी नहीं देखा। वो जो कहानी लिखी हुई है वो मच लेटर की कहानी है, नहीं देखा अभी होगा, उसके लेकिन बाद सहाबा किराम ने देखा होगा। यार शाबिर बीच में मत बोला करो जब मैं बोल रहा होता हूँ, दूसरे बंदे को जवाब जरा मुझे देने दो। इंडिया के जो बादशाह ने कहानी लिखी है वो 600 साल बाद की कहानी है और जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आपके इस्लामिक स्कॉलर्स ने अभी अली दावा ने पिछले 2 हफ्ते पहले इसके ऊपर इसका भंड खुद फोड़ा है और बहुत सारे लोगों ने फोड़ा है, इंडिया में नहीं देखा गया। ये बात हो रही है मक्का के अंदर। अब मुझे बताओ, मक्का के अंदर चांद तोड़ दिया मोहम्मद ने, किसी ने इस्लाम ही कबूल नहीं किया? क्यों? क्या बात है? मक्का में टोटल कितने मुसलमान हुए थे? बात कर। 13 सालों में कितने मुसलमान हुए थे? मैंगो भी नहीं। अब अगर मैं एक नॉर्मल इंसान आज यहाँ पे बैठ के कहूँ ना, बाहर जाओ और देखो चांद टूट गया है, 2 टुकड़े हो गया है, यहाँ बैठ के कहूँ, शक्ल भी ना दिखाऊं और मैं कहूँ मैं नबी हूं, मैं मौजज़ा करता हूं, बाहर निकल जाओ और चांद के 2 टुकड़े हो गए, देखो हो गए ना, मेरे पे यकीन ले आओ, मैं नबी हूं। मैं कहता हूं आज जितने भी लोग पूरी दुनिया में इसको देखेंगे और मेरी ये वाली स्टेटमेंट साथ में सुनेंगे, वो कहेंगे हाँ हम आदम पे यकीन लाए, ये अल्लाह का नबी है। चांद के 2 टुकड़े हो गए। मक्का में मोहम्मद ने जमीन पे खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े कर दिए और मक्का में वो अपने मुसलमान भी ना बना सका। उस वक्त लाला जी अबू तालिब जिंदा थे और चांद टूटने की जब बात थी उसके 5 साल बाद अबू तालिब का वफात हुई थी और अबू तालिब ने मरते वक्त भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। इससे सब समझ सकते हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच। एडम, इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि ये जिन लोगों की बातें कर रहे हैं वो इतने बड़े दिमागी अपंग थे। एक मशहूर किस्सा है हजरत अबू बकर के बारे में। जब वाकिया मेराज हुआ और मुश्रिकीन ने मक्का हंसी उड़ा रहे थे और जब वो हजरत अबू बकर के पास आए और उन्होंने बोला कि यार ये एक शख्स है जो ऐसे ऐसी बातें कर रहा है, तो कहते हैं कि कौन? तो कहते हैं कि आपके रसूल मोहम्मद कह रहे हैं। तो अबू बकर जवाब देते हैं कि अगर मोहम्मद ने कहा है तो सच कहा है। सही हो गया। तो भाई ये इतने दिमागी अपंग थे। हाँ साजिद, उसमें एक ये ऐड कर लीजिए, पहले मुशरिकीन मक्का ने ये कहा था कि कोई ऐसा कहता है तो आप यकीन करेंगे, उन्होंने कहा नहीं। तब मुशरिकीन मक्का ने कहा कि आपके दोस्त मोहम्मद ऐसा कह रहे हैं। तब अबू बकर ने कहा था कि अगर मोहम्मद ने ऐसा कहा है तो सच कहा है। उसके बाद ही उनका नाम लक़ब पड़ा था सिद्दीक, वरना अबू बकर उनका नाम था, सिद्दीक उसी दिन से उनका नाम पड़ा था, यानी सच्चा। तो आप सोचो कि दिमागी अपंग थे, इन्होंने वेरीफाई कुछ नहीं किया, बस चूंकि मोहम्मद साहब ने कह दिया ये लोग मान लेते थे। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि 2 टुकड़े दिख रहे हैं तो ये ऐसे ही बोल दिए रहेंगे हाँ। अभी देखो, अभी क्या होता है ना कि बच्चे लोग के साथ हम लोग खेल खेलते हैं ना,
मजाक प्रैंक करते हैं मालूम है मैडम? तो हाँ, एक बच्चे हाँ। को सताने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, देख सामने देख ऐसा हो गया, तो देख के वो हो जाता है, मतलब थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो बाकी जो 5-6 लोग घर के रहते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग को भी दिख रहा है। एक है ना एक है ना मूवी थी जैकी चैन की, मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा जो है वो तभी वीसीडी मिलती थी, तो वो लाके जैकी चैन की बहुत सारी मूवीज लाके लगाते थे, तो मैं भी देखता था। तो उसमें एक मूवी है जैकी चैन की, उसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो एक किताब पढ़ता है और उसमें गायब होने का फॉर्मूला लिखा रहता है कि आप किस तरीके से गायब हो जाओगे, ठीक है? तो इसके दोस्त लोग देख लेते हैं कि ये इस तरीके की किताब पढ़ रहा है, ठीक है? तो उसके साथ वो लोग कैसा प्रैंक करते हैं, अब ये ट्राई करता है कि मैं गायब हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? तो ये जब दोस्त लोग के सामने आता है तो वो दोस्त लोग है ना इसको देख के अनजान बन जाते, जैसा ये दिख ही नहीं रहा है। 5-6 दोस्त पूरे अनजान बन जाते हैं, ठीक है? तो इसको क्या लगने लगता है कि भाई मैं सच्ची में गायब हो गया हूं। तो ये क्या करता है, पूरे अपने कपड़े उतार देता है और एक लड़की के सामने जाता है, ये समझ के कि मैं नहीं दिख रहा हूँ इसको। Oh my God. मुझे वो मूवी का बड़ी नाम दिक्कत याद हो नहीं है, बड़ी जबरदस्त मूवी थी। तो ये इस तरीके का सहाबा लोग के साथ मामला था। वो मोहम्मद साहब जो बोलते थे वो चुपचाप हाँ हाँ करते थे, तो वो दिख रहा या नहीं दिख रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ मोहम्मद साहब ने कह दिया चांद के 2 टुकड़े हुए, तो वो भी हाँ हाँ करते होंगे कि हाँ यार रसूलुल्लाह हमको एक चांद का टुकड़ा इस साइड और दूसरे चांद का टुकड़ा दूसरे साइड नजर आ रहा है। ये खेल पूरा इस बात का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं एक या हो बात सकता है बोलूं नबी सर, ने एक दूसरे के चांद को दिखलाया होगा मैं एक बात दिल की बोलूं, तरफ से। जो जी बोलिए। कुफ्फार ने जो हदीस में है, जो कुफ्फार ने जो चांद को टुकड़ा होते देखा, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने भी उनको मैजिक बोला लेकिन इनकार नहीं किया, ठीक है? तो अरे चांद को भाई देख के किसने लिखा, सहाबाए किराम ने किसने देखा लिखा? है, ये अरे हदीस की किसने किताबों में है। अरे वही जी बोल रहा हूँ जी ना, मुसलमानों ने लिखा ना। हाँ, ये बस हमारे बात लिए रखो, ये हुज्जत है जी, आपके लिए हुज्जत है, हो ओके नहीं रखे सकते हो। हैं लेकिन हमारे लिए हुज्जत है। अरे और जो मेरे सुलेमान कल अलैहिस्सलाम का जो शबीर, मेरे कल की बेसिक स्टैंडिंग क्या होती है? मेरे कल